Welcome to Ideas Matter Most. Well, my Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha, sir. Welcome to the program. So there is a lot of IITians waiting here for listening to you, your story, the fighter story, the things what you have done, and now you're there to experience. Share your experience to all the young generation so that they can get inspired to be themselves in their own way. So before getting on to the topic, I want to ask you, sir, like you have been, I have heard a lot of talk shows you have done. So, एक war खत्म हुई, दूसरा शुरू. So that is the most amazing statement sir has told. I hope everyone would have heard that in Swarna Swar Bharat show because he has clearly told that this any battle stops, there is another battle which actually starts. That's a very powerful statement because everybody's life is a war. Every day we fight battles, and he is a living example of that. And would love to know that what is that journey made you reach into such conclusions? I've heard you talking a lot of inspiring stories. What is that journey which made you reach into such amazing conclusions? Mike is all yours. All right. Uh, to start with, when I was a kid, I was actually totally opposite of what you see me today. Actually, I'm still the same man who was a kid. As far as dealing with our own people, अपने लोगों से बात करनी है, अपने लोगों से जो डील करना है, तो बस अभी आज भी वही हूँ. But only difference is now I know we have adversaries, we have enemies, and they need to be dealt with, and they need to be dealt very, very strong. And how did it happen is that as I grew up as a child, I grew up with three principles primarily. One of them was that I was a very, very peace loving man. I'm still a very peace loving man. By that, what I mean is, I felt that peace is as basic a requirement as food, water, shelter, and conjugal needs. And I always felt ki, why should anybody not want to live in peace? So even if there was a conflict, even if that conflict involved me as I grew up as a child, किसी बात पे लड़ाई हो रही है, आई ऑलवेज थॉट दैट आई मस्ट प्रिवेल अपॉन दैट पर्सन कि यार नहीं लड़ते हैं, क्या फ़ायदा लड़ने का। एंड बात होते होते नहीं 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 करके उसने हाथ उठा भी दिया, तो ना भी चाहते हुए आई गॉट इन्वॉल्व इनटू दैट फाइट. वेदर आई वन इट और नॉट इज अ डिफरेंट इशू, बट इवन इफ आई वन इट आई रिग्रेटेड, यार आई कुड नॉट प्रिवेल अपॉन दिस गाई नॉट टू फाइट. And I had this firm belief that everybody in this world can be prevailed upon. If I could not, it is my failure. That is one. The second belief was because my father was in Air Force, so we used to keep getting transferred all across the countryside. And क्वार्टर एयरफोर्स का होता था, एक तख्ती लग जाती थी, उसके ऊपर भगवान की फोटो है, आरती की पुस्तक. अब वो भी मुझे याद नहीं होती थी, तो जब आरती होती थी मैं उठा के पढ़ता था उसको. नॉट आई गेट ए गुड एग्जाम्पल, बट दैट्स व्हाट इट इज. एंड वेर एवर वी वेंट इन एवरी डिफरेंट स्टेशन, वहाँ पर कोई ना कोई टेम्पल होता था. सो आई यूज टू फील दैट दिस, वहाँ पर कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं दुर्गा जी का मंदिर है, कहीं कृष्ण का मंदिर है, कहीं कोई है. तो मुझे लगता था ये यहाँ पर कलेक्टर है, मतलब ही इज द इंचार्ज, ही और शी इज द इंचार्ज. तो यहाँ पर जो मांगना है इनसे मांगना है, नंबर मांगना है, ऐसे कि ये कहना है भगवान टेस्ट ये अच्छा कर देना यार, ये तो मैंने ये इंचार्ज. इट वॉज सो फ्लेक्सिबल. आई मीन टू से दैट माई फेथ वॉज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल. आई डेंट फील कि ऐसा कुछ है. So faith was very flexible, peace loving. And the third is that because my father is in Air Force and we used to travel a lot in olden days, slow trains. I belong to Chhapra, Bihar, and my father posted in South India in Bangalore. So 4 days, 5 days journey, different trains. And I used to keep standing at the window, looking at Bharat. खेत निकल रहे हैं, नदी निकल रही है, गांव निकल रहे हैं, एंड ब्यूटीफुल. मेरे को आई वॉज सिंपली mesmerized बाई माई कंट्री साइड. कितना सुंदर है यार. मुझे लगता था हमारा देश अनंत है, खत्म ही नहीं होता यार. ज्योग्राफी पढ़ी थी कि बॉर्डर है, बट परसेप्शन में मेरे को तो दिख ही नहीं रहा था, अनंत है, चला जा रहा है. एंड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब वो वाला नहीं था, क्रिटिकल माइंड नहीं था, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है. तो मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी. मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, बट मुझे इसको कमी नहीं लगती थी. परफेक्ट है, वंडरफुल यार. आई वुड स्टिल गिवन ए चॉइस, आई वुड स्टिल वांट दैट ओल्ड विलेज ऑफ माइंड रादर देन टुडेस, जहाँ पर कोई बिजली नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी. तो ऐसा कुछ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं था, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं था. एवरीथिंग वाज गुड. इंडिया वाज एंडलेस. इंडिया वाज ग्रेट. Now with these three beliefs, I have stepped into the army. My first posting, line of control, Kashmir. I reached my battalion headquarters, company headquarters, and start walking beyond. Next day, patrol में. And I'm walking in the patrol, and the jawan next to me taps on my shoulders. वो साहब रुक जाओ. मैं क्या हो गया?
बोला हमारा इलाका खत्म हो, वो देखो सामने पाकिस्तान का पोस्ट है, अभी एक कदम आगे रखेंगे वो गोली मारेगा। आई ग्रो अप विद दिस बिलीव दैट माई कंट्री इज एंडलेस, और यहाँ पर मुझे देश की सीमा समाप्त होते हुए दिखाई दे रही थी, और ये सीमा भी किसी को स्वीकार्य नहीं थी। सो यू आर थ्रेटनिंग इवन दिस। तो मेरे से ये सवाल भी कई लोग पूछते हैं जैसे इंटरव्यू में, टीवी वगैरह में, कि आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा था इसलिए आप सेना में गए। मैंने कोई जज्बा नहीं था, मैं नौकरी करने गया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देशभक्ति की मुझे आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी ना। जब आप स्वस्थ हो, इफ यू आर हेल्दी, यू डोंट फील लाइक यू नीड टू बॉदर फॉर योर बॉडी, राइट? ओनली व्हेन यू फॉल सिक और द हेल्थ इज थ्रेटेंड दैट यू स्टार्ट बॉदरिंग। तो मुझे जब देश में भी प्रॉब्लम ही नहीं है, तो देशभक्ति ये करने की क्या आवश्यकता है? बढ़िया तो है देश। जब मैं वहां खड़ा हुआ और जब मुझे देश पर खतरा सामने साक्षात दिखाई दिया, देश की सीमा दिखाई दी, और उसके बाद जब मैं वहां से पलटा, वही जमीन जो मैं चल कर गया था, वही जमीन, वही पहाड़ मैं देख रहा था, दोबारा पलट के मुझे देश समझ में आना शुरू हुआ वहां से। और तब से देवी और सज्जनों, वो समझ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसके बाद से आज तक समझ ही रहा हूं, और जो मैं समझा हूं वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। Amazing. I can't express my the way the patriotism is being overflowing right now, because I feel that every Indian should have a feeling which actually to protect your nation in certain way that external forces will not defeat us. So in that certain way, sir, Sinha sir has actually done a lot job in terms of protecting the country out in the borders. And then right now, he's actually there again to protect the country by expressing his experiences. Before that, let me complete that part. Yeah, please, sir. Sorry, sir. I spoke about one belief that the country is endless. वो मेरा वहां खत्म हो गया। देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खतरा नहीं है। That belief of mine was thrashed out. The second belief was I was a peace loving man. So I thought कि यहाँ पर जो लड़ाई है, when I was given the material of confiscated literature of the terrorists and the Pakistanis and their radio intercepts, I was made to listen that, like made to understand the enemy. And I thought कि यार इसको भी समझा ही सकते हैं, why not? मान जाएगा ये, एक सिंसियर अटेम्प्ट तो करते हैं। And I began to try and strike a conversation with those guys. So initially रेडियो सेट पे बात करता था, वो भी बैठा है, अब जंगल में हम भी बैठे, पहाड़ पे वो बैठा है। Most of the time तो they used to switch it off. Moment I used to try and interfere in their frequency and all. But at times कोई बैठा, वो भी पहाड़ पे बोर हो रहा होगा, तो बोला हाँ भाई साथी बोल। तो मैं बोला यार क्यों लड़ रहे हैं हम लोग यार, why are you fighting? एक ही तो है हम सारा। Can we have that video? A conversation with a terrorist. Just run that. मैं सुनाऊँ उससे बढ़िया आप देख ली। So one of these days what happened is I used to continue to have this conversation. जब भी मेरे को टाइम पास मतलब लगा यार, ऑपरेटर को पता लगा कोई कहीं तो एक फ्रीक्वेंसी में कैच कर आ गया, हाँ भाई साथी, तो ठीक है। सो एक दिन मेरे ऑपरेटर ने एक दिन रिकॉर्ड कर लिया था कैसेट में, तो वो बाद में मेरे को दे दिया था, which I later on या द सेम वन। लाइट्स ऑफ कर दें। या तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है यार, हम सब एक ही तो हैं। तेरे खून और मेरे खून में कोई फर्क है क्या? ये क्या तुमने इंसानियत के बीच में दरारें डाल के रखी हैं कि तुम्हारा है और हमारा है? हम सब एक ही हैं क्या? तेरे चार हाथ है क्या? मेरे भी दो हैं, तेरे भी दो हैं। तेरी भी 5-5 उंगलियां, मेरी भी 5-5 उंगलियां। एक ही दवाई से तेरा भी बुखार ठीक होता है, मेरा भी बुखार ठीक होता है। तो ये तूने हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? एक दफा मुसलमान होके देखो, दिन पर चलो 23 लेवल अपना कितना मजा आया, कितना सुकून है। क्या हुआ कि कभी उधर है कभी उधर है, ये लोग आपको गेम मतलब सही है। अब नहीं सब नहीं आते। अम्मा यार तुम्हें तो बोल ही नहीं रहे हम। हमारा तो ये मुल्क ही है इतना बड़ा, और इतना दिल इसका इतना बड़ा है कि यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध सभी रहते हैं। इस मुल्क का एक ही मजहब है, मोहब्बत का, भाईचारे का। इंसान का और कोई मजहब नहीं होता है। नाम चाहे जो ले लो, सबके सब पहले इंसान है और मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं और रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना ये आप मत गलत सिखाओ। तो खैर है ना, आप ऐसा करो, अपना इस्लामी कानूनों को सामने रखो, अपना अफगानिस्तान में आप क्या कहते हैं उसको हिंदुस्तान में नाफज करो, तो हम आपके पीछे हैं। यार अफगानिस्तान और ये सब छोड़ो ना,
हम यहाँ बताया ना हमने, जो लोग चाहेंगे वो होगा। जो लोग जिस मजहब को चाहेंगे वो उस मजहब की पूरा इबादत कर सकते हैं। जो लोग जिस लीडर को चाहेंगे वो उस लीडर के वोट दे सकते हैं। यहाँ पर उसको पूरी आजादी है। यहाँ कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को लोगों ने वोट दिया और मुशर्रफ ने उसे खा लिया। ऐसी कोई दादागिरी, कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग प्यार मोहब्बत से जिसको अपना नेता चाहते हैं, जिसको अपना लीडर चाहते हैं, तो उसको चुन सकते हैं। आप कहते हैं ना हम इस्लामिक रूल ले आओ और आप भी रहो उसमें, हम भी रहेंगे। प्लीज नोट तो आप लोग नहीं मानते तो फिर जाहिर है लड़ाई तो होनी है। में हथियार है, वो बात ध्यान दीजिए। अरे इस्लामिक रूल या कोई भी रूल वो हो जिसमें लोग खुश हों। लोगों की जो मर्जी है वो हुकूमत आने दो। तुम अगर चाहते हो, तुम समझते हो कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैदान में आ जाओ, लोग तुम्हें वोट दे देंगे, तुम यहाँ का वजीर आला बन जा, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। यार हम तो फौजी जो हैं, हम कभी हुकूमत करना नहीं चाहते हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरह। जो हमारे लीडर हैं हम उन्हीं की बात मानते हैं। तुम बन जाओ लीडर, हम तुम्हारे को सलूट मारेंगे कल। Thank you. So this is the kind of conversation I used to continue to have with those guys. With the firm belief कि मना लूंगा मैं। और मेरे साथी, मेरे कलीग हंसते थे, बोले क्या कर रहे हैं तो, आतंकवादी को साहब क्या कर रहे हो, आतंकवादी को समझा रहे हो। नहीं नहीं यार, शांति से, पीस, शांति से कौन नहीं रहना चाहेगा दुनिया। एंड देवी सज्जनों, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा समय आया when I suddenly realized that I am speaking to a different animal now. और अब ये नहीं जो समझ रहा है, इसमें मेरा दोष नहीं है। साक्षात बुद्ध और नानक भी आ गए तो इस जानवर को नहीं समझा सकते। एंड इट इज देन, तो मेरा ये दूसरा बिलीफ जो फेथ वाला था ना, बड़ा फ्लेक्सिबल है। एंड आई वाज अमेज्ड एंड अगास्ट कि यार ये फेथ के लिए सब कुछ करना चाहता है, दुनिया खत्म करना। हाउ इज इट पॉसिबल कि यार फेथ के लिए, भाई कर ले यार, तेरे को जो करना कर ले, मैं जब मैं कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। आई वाज अगास्ट कि यार फेथ के लिए पूरी दुनिया खत्म करना। उसके बाद से फिर जो भी मैंने पढ़ा उस वक्त उतना ज्ञान भी था, देन आई प्रॉब्ली रियलाइज दैट वी लॉस्ट ओवर 1 बिलियन लाइव्स ऑन दिस मैडनेस है यार। एंड स्टिल डोंट गेट इट इवन टुडे। सिंपल कॉमन सेंस है, बड़े बड़े गुड़ ज्ञान की तो बात ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई द वर्ल्ड इज नॉट गेटिंग दिस। एंड देन आई रियलाइज कि दैट सेम पीस लिविंग मैन, आई एम अ वेजिटेरियन, आई वुड नॉट लाइक टू kill a bird or an animal for my taste, for my desire. But then when I realized that I'm dealing with a different animal, I was thirsty for blood. I wanted to kill. I killed to my heart's content. I wanted to chop off necks. I did that to my heart's content with no remorse and absolutely thoroughly enjoyed it. I'm very fortunate that I got to be in the army. I'm fortunate that I got an opportunity to fight the enemy. Fortunate that I got an opportunity to kill it. Fortunate that I got an opportunity to look into the eyes of a dying terrorist. No, I'm not a sadistic man. I do not take any pleasure in anybody dying. What I wanted to look in his eyes is the depth of a perception and a belief that he can come, step into this country and destroy the harm Bharat. यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को तो नुकसान पहुंचा सकता है। तेरे भी इस विश्वास को मैं टूटते हुए, खंडित होते हुए देखना चाहता हूँ तेरी आंखों में। And there's no better moment, no better joy that I've had in my life than that moment when I saw into the eyes of a dying terrorist. I live with the same belief. It's not about terrorist. Anybody, anywhere in this world, or even here, if he thinks ill of Arak, I have the same attitude towards him, even if it is here within the country. हर वो व्यक्ति जो इस राष्ट्र का अहित चाहता है, मैं उसका अंत देखना चाहता हूँ और उसमें मुझे बहुत आनंद है। सो दैट इज व्हाट इज। तो वो मेरे तीनों बिलीफ सेना में आए, बदले, और उसके बाद से मैं चलता गया और what I am man today. But that belief is changed only for the adversaries and enemies of Bharat.
for own people, I'm still that same old guy, nice old guy. Wonderful, wonderful, amazing story, sir. Like I forgot for some time. I'm sitting here to ask questions to you because I became one among the audience who was actually listening to your amazing history, like or a legend story. So, as a matter of fact, I heard you had a discussion with you. So I came to know that you are right now after protecting the nation for a long time on the borders. Now here again protecting the nation by expressing. Yeah. I'm so how to say that? I mean, so enthusiastic to hear that. So can you tell me something about that? Because how do you plan to express your experiences, and how are you planning your journey with your visions and previous experiences? How do you actually plan it? Can you just add them? It's not, I had a few plans, but it's not going as per that, because when I stepped out of the army, मेरा एक भ्रम था जो मैं लेके निकला था सेना से, कि मैं राष्ट्रभक्ति के भाव लेके निकलूंगा बाहर और लोग हाथों हाथ मिलेंगे. But it's a different world outside, so I'm learning. It's a hard truth. The world outside, I'm not complaining. Yeah, now I've adjusted to it. I've adjusted my game as per the atmosphere in the pitch. But I felt it's going to be easy, and but बाहर देखा तो everybody is I, me, myself ज़्यादा है. But हाँ ठीक है. But the point is, whichever way the journey goes is a different issue. Let me tell you one thing. I realized in the army, now while I was in the army, that the adversaries have almost given up on the fact that they can get the better of the Indian soldier. They want to destroy us. They want to harm us. So they've almost given up. वो था ना पहले, when we got independent, the Pakistani used to say कि Pakistani army used to say कि ब्रेकफास्ट अमृतसर में करेगा, लंच दिल्ली में करेगा. वो now they are scared कि यार वो लंच कहीं इंडिया वाले लाहौर में ना करने लगे, right? So now the tables have turned. So they know that they can't get. And after Galwan, even the Chinese know that man to man they don't stand any chance. बाकी कोई बड़ी मिसाइल की बात हो तो I can't say. But man to man the Chinese also. So they've given up. But एक ये लड़ाई चल रही थी. There are two ways you can destroy a nation. That is one they were trying this. The second way was already on for ages. But now that is the only plan that they are left. And that is to weaken us from here. And ladies and gentlemen, we have a battle on our hands. We have a battle on our hands. And when we talk of battle, in the army, when we talk of battle, we talk straight, we talk hard, we talk brutal. Because you can't walk into a battle with any kind of an illusion, right? आप भ्रम लेके युद्ध में नहीं जा सकते. If you do so, then you lose blood, you lose limbs, you lose lives. Even worse, you may lose the battle altogether. So now they have started to attack. They were already doing that, but now this is the only plan left. This is the only plan left. The military wala part, their conflicts will be there, but they know that they can't get the better of it. There's different reasons the conflicts are there, simply to drain us, to keep us occupied and things like that. There are other reasons. I'm not getting into it. But they've given up that hope that वहाँ से वो लेके आर्मी आके कोई भी लेके अंदर चला जाएगा, एरिया कैप्चर कर लेगा. That they've lost it. So यहाँ पर वो कर रहे हैं, and there's a reason why they're doing it. आपको भी लगेगा कि 1000 वर्ष से चल रहा है यार, कोई ना कोई आ ही जा रहा है, कोई ना कोई अटैक कर रहा है, ही का कराता आता है, दूसरा जाता है, फिर कोई उसको हम खत्म करते हैं या डील करते हैं, या वो खुद कमजोर होता है, फिर कोई और आता है. Why is it happening, you know? So you will have to understand, you know. You'll have to understand कि the powers of the world, they firstly, उनका तो अपना self interest है, they would not like anybody else to grow. But भारत का एक स्पेशल रीजन है. पूरी दुनिया के हम एकमात्र सर्वाइविंग ओरिजिनल सिविलाइजेशन. We're the only one. So please understand, if all of us here sitting came out of our villages, suppose hypothetically एक सिचुएशन बोल रहा हूँ मैं, came out of our villages, and जब हम गांव से निकले थे तो हमें अपने अपने कुल देवता की एक मूर्ति दी गई, और बाहर आए हम शहर में काम करने के लिए. तो उसके बाद काम के प्रेशर में कोई डाकू आया, तो कोई डाकू ने कनपट्टी पे बंदूक रखा, किसी की लेके चला गया. कोई आदमी भूखा मर रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, किसी ने बोला पैसे ले, दे दे मुझे मूर्ति, उसने दे दी. किसी ने लापरवाही से खो दी, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ. और इस सारे हॉल में एक आप बचे हो अभिषेक, जिसके पास अभी भी बची है. आपको
आप भूखे मरे, आपको पैसे दिए गए, आपने नहीं बेची, आप डाकू आए, आप लड़े, मरे, घायल हुआ, खून बहाया, लेकिन आपने फिर भी वो अपनी कुल देवता की मूर्ति नहीं दी है, और अब कुछ भी करके आपने बचाया है। और अब एक समय आ गया है, जब आप भूखे मर रहे थे तो ठीक है, शायद मैं हंस भी रहा हूँ, क्या करेगा मूर्ति लेके, लेकिन अब आप विकास भी करने लग गए हो, आप ग्रो भी करने लग गए हो, पैसे भी कमाने लग गए हो। इमेजिन द plight हाउ एवरीबॉडी एल्स इज गोइंग टू बी जेलस ऑफ हिम। तो पूरी देवता में, पूरी विश्व में एकमात्र सभ्यता हमारी ही बची है, मूल सभ्यता, जो मानव विकास के साथ साथ हुई थी, बाकी सारी सारी समाप्त हो गई। तो द वर्ल्ड इज वेरी वेरी एनवियस ऑफ अस लेडीज एंड जेंटलमैन। वो कितनी मूल्यवान है, वो ईर्ष्या ईर्ष्या जो करता है वो जानता है। शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी मूल्यवान वस्तु है। तो इसीलिए पूरी दुनिया हम पर आक्रमण कर रही है, और इस निहित शक्ति के साथ जब यह राष्ट्र ऊपर उठेगा तो कितना शक्तिशाली होगा, ये भी पूरी दुनिया जानती है। तो nobody wants art to grow. They all know that. And the visionaries of around the world have always known this. The visionaries around the world have always known this, that एक दिन ये भारत उठेगा. You can read the literature all around it. दूसरी पूरी दुनिया में. So they always knew this, and hence they were always preparing that one day this nation will get up and start rising. And they were preparing to weaken us. And a lot of things have been done to us for the past about whatever 70 years से तो ज़्यादा ही हुआ है. I don't know. फ्रीडम के बाद ज़्यादा ही हुआ है. फ्रीडम के पहले भी हो रहा था, बाद में भी हो रहा है. A lot of things have been done to us. A lot of narratives that have been given to us is wrong. The basic principles, concepts of life, of personal life, family life, social life, जो हमें समझाया गया, वो सारे गलत है. इसलिए कि हम कमज़ोर हो जाएं, दिमक लग जाए हमारे अंदर पूरा का पूरा, जब हम पूरी तरह से जर्जर हो जाएंगे, they will come just give a portion and will fall. राइट? तो एक तो ये है, आपने अपनी सभ्यता रखी है, और अब आप पूरी दुनिया जो कंट्रोल करी उसको चुनौती भी देना प्रारंभ कर रहे हो. सो द वर्ल्ड इज गोइंग टू कम डाउन वेरी हार्ड ऑन अस. आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हियर. ओके, get ready for a brutal battle, ladies and gentlemen. Time from now to beyond is going to be very very tough. I'm not scaring you. I don't know, when हमारा तो ऐसा है कि when somebody talks of battle, it actually excites us, right? There was a similar interview. Someone was asking me, what is the favorite music that you like? That's again available on social media. I think Insta or YouTube पे पता नहीं. I told him the favorite music that I like is when we used to go around in the Kashmir looking and hunting down for terrorists. घंटों घंटों जंगल, पहाड़, शहर, गांव घूम रहे हैं, और करते 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 लगते लगते मतलब भाव तो हो गए, थक गए, मतलब ऐसा लग रहा है यार कहाँ मिलेगा. एंड सडनली वो कहीं घिर जाता होगा. when हम अप्रोच कर रहे हैं कहीं, तो अंदर से जब फायर आता था होली का, उससे सुंदर कोई संगीत हमें लगता नहीं था. With that meant battle. फिर सारी थकान, सारी भूख गायब हो जाती थी. So what I mean to say is, ladies and gentlemen, battle actually excites us. So if you like it, a very good time that you are in for. Right? Life is going to be very, very meaningful. The world is not letting you just walk away. India is planning 2047 developed economy, right? Developed economy 2047 India is planning. हलवा है क्या, दुनिया दे देगी आपको ऐसे ही, right? Don't think that you will move ahead. What does it appear to be? That we will move ahead of every other nation. It's kind of a race that we are going to win. We're going to leave every country behind. है ना? It's not a track and field race जो स्पोर्ट ग्राउंड पे होता है, जिसमें कि एक धावक जो है वो तेज दौड़ना शुरू करता है, तो बाकी धावक कुछ नहीं कर सकते if you can't match up with him. So the guy who is running ahead, he sees that ये पीछे आ रहा है लंबे लंबे कदम कदम भर के. He can't do anything. The guy who is behind, he is envious and jealous कि यार ये तो मेरे से आगे निकल गया. He can't do anything. The guy left, right, they can't do anything because there are rules, ladies and gentlemen. Because if they come and obstruct you, they will be disqualified. But ladies and gentlemen, देवी और सज्जनों, राष्ट्रों और सभ्यताओं की इस दौड़ में कोई नियम नहीं होता है. It's a free for all game. So every dirty, brutal trick that you can't even think and imagine will be thrown at you. The world is going to come down very hard at you. Be prepared for that. So simply, if you think that simple hard work, मेहनत करके हम आगे निकल जाएंगे, doesn't work like that. You need to be as shrewd, as cunning,
as intelligent, as wise, as so what I'm trying to say is that स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से नहीं काम करना है. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ट्रैक एंड फील्ड में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से नहीं काम करना है. Irrespective of whichever field you go, you'll have to think like a warrior. Whichever field you go, destroy that adversary. बिजनेस में गया हो, खत्म कर दो उनको. साइबर स्पेस में गया हो, खत्म कर दो उनको. DRD में गया हो, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यहाँ पर IIT के बच्चे हैं, if possible, please get into things which help the military of this country and space. So if you go into DRDO, make such weapon platforms that the world starts shivering. Peace की बात कर रहे हो, who's ever the prime minister at that time, foreign minister at that time, whenever he goes wherever in this world, when he goes with an agreement, whichever power, that power जो सामने वाला है वो जानता है कि ये जब मुझसे बात कर रहा है इस समय टेबल पे, there are weapon platforms in the space, there are weapon platforms of Bharat in air, there are weapon platforms of this Bharat in the sea next to me. At a switch of a button, I'll be no more. Then you tell him, Mr. Prime Minister, Mr. President, can we sign peace? He'll say, yes, sir, we will sign peace. That's how peace prevails. That is how peace will prevail. There's no other option. So आप जिस फील्ड में जाओ, मैंने कहा ना, जिस फील्ड में जाओ, do that, think like a warrior for Bharat. Don't like a sportsman. With that spirit, destroyed and annihilate every adversary that comes. And there are enough adversaries within the country also. Be ruthless on them. Not ifs and buts. राष्ट्र का जब अस्तित्व का सवाल आता है, be thirsty for blood. Destroy them. That is what it is. Amazing. Give a round of applause, man. Because no, we would have heard a lot of speakers here. Every single one of them were amazing. We heard a lot of advices from them about how to take leadership seriously, how to take startup seriously, how to have all the qualities when it comes to discipline, every other qualities. But this is one person, one speaker, Colonel Sir, who actually told you to be like a warrior wherever you go, fight all the adversities, and make sure that nothing is harming our country. It's not because we are not considering all the other world as one, but instead, otherwise, we will be harmed in the end. Our homes, our unity, our culture, everything will be destroyed. Then we are no more. So that's a wonderful statement, sir. But I would like to ask you one question, which everybody else also want to know. That is, you were a battle-injured person during that Kargil war. Like, would you mind actually sharing us that experience? Like, what exactly happened during that? I have heard that you're almost about to pass away, and then you were in the last moment you were about back to life. So would you like actually sharing that experience? Yeah, it happened not in the Kargil war. Kargil war के एक साल बाद 2000 में. Okay. When I was fighting terrorists, so that is where it happened. Okay. And ठीक है, एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू. वो लड़ाई शत्रु से थी, ये लड़ाई मृत्यु से है. वो लड़ाई सम्मान की थी, ये लड़ाई प्राण की है. लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा थी. So what happened is that when I got hit, I knew it is over. और ये भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको I'll tell you a news. आपको शायद बुरा लगे, but let me tell you a truth today. क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, मानते नहीं है. आप सबको मरना है. Feels bad? Sorry guys. समाचार है ये. And I experienced it. So be prepared for that. And how is it if you want to be prepared? So I'm giving you a first-hand experience of how it is, right? And we should all prepare for this moment. In fact, this is the only moment for which we should all prepare. We should live to die, right? So when it happened, when I got shot, I knew it is over. And not that I wanted to live, not that I wanted to die. It's just that हर क्षण का एक सत्य होता है. And you got to be in that moment, accept that moment. And I do not know, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो कैसे क्या रहता है उनका मानसिक स्तर, I do not know. But if this जो उनका स्तर होता है वो ऐसा होता है कि वो हर प्रकार के मोह माया से, अटैचमेंट से वो दूर हो चुके होते हैं, ऊपर हो चुके होते हैं,
If that is what is being, I still do not know. So I have been in that zone for a very brief moment when I got it. So I knew I'm dying. I knew I have a body, but I was not attached to it. I knew I have a family. I knew all the worldly things that I have, possessions, friends, but I was not attached to it. I was totally detached. And as in that moment, I knew I'm dying. And as I was going, I was wondering क्या होगा. एक और बात बता दूं मैं आपको ना, उस वक्त आपको सारी उल्टी बातें ध्यान में आएंगी. उल्टी मीन्स वट एवर रॉन्ग यू हैव डन इन योर लाइफ, वो सब आएगा. जो गलत किया वही सब ध्यान में आएगा. और मुझे लग रहा था यार ये तो पक्का मतलब मुश्किल है. और मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि शायद अगला जन्म मिलेगा. जब ये सब बाकी मैं आई एम नॉट गेटिंग इन टू दी जर्नी ऑफ इट, वो किस तरह से उठा रहे थे वो अलग क्वेश्चन है. तो मुझे लगा था अगला जन्म क्या मिलेगा. इसलिए यू नो आर्मी में होता है ना, जब हमारा टाइम हो जाता है तो हमें ट्रांसफर आना है, हमें पता होता है ट्रांसफर आना है. नॉट दैट वी वांट टू गो टू प्लेस ए प्लेस बी, बट एक उत्सुकता रहती है, पता नहीं कहाँ आएगा. मैंने पता नहीं यार कौन सा जन्म देंगे. चिड़िया बनाए तो बढ़िया है यार, चिड़िया वाला ठीक है. इंसान तो नहीं बनाएंगे, ये तो पता है, उतना काम किया नहीं है. मैंने यार चिड़िया बना दे तो ठीक है यार, अगला जन्म जो भी है, ये सब सोच रहा था मैं. तो कई बार जीना ऐसा लगा कि अब मरूंगा नहीं मरूंगा, वो बच गया. फिर आईसीयू में गए, ऑपरेशन थिएटर में गए, बाहर आया. तो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, कई बार ऐसा बीच में लगा मुझे, कई बार लगा कि खत्म हो गए खेल, बट एवरी टाइम आई केम बैक. तो ऑपरेशन थिएटर से बाहर जब आया तो आई वाज लाइंग ऑन द बेड और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे. आई कुड नॉट मूव, आई कुड नॉट इवन विंक, आई कुड नॉट इवन मूव एन एक्सप्रेशन. ऐसे होते हैं ना, वो भी नहीं दे पा रहा था मैं. सिंपली फ्लैट फेस लेके लेटा हुआ हूँ मैं. वो सारे गैजेट वेजेट लगे हुए हैं, पाइप शाइप लगे हुए हैं, डॉक्टर्स ने चारों तरफ है. एंड मेरी सांस जाने लगी. अब सांस जाने लगी, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे पड़ा हुआ. तो मैंने कहा यार अब फाइनल है. और इस बार मुझे ध्यान में आया कि यार पिछले 2-3 बार जब मैं टूट रही थी मेरी सांस, तो मैं भगवान को याद नहीं किया था. और इसीलिए मेरे को भगवान बार बार नोट आउट देके वापस भेज रहा है. पवेलियन जा रहा हूँ, फिर वापस भेज रहा है कि इस बार तो भगवान को याद कर ले. तो मैंने कहा अच्छा वो याद आ गया. तो जो मुझे आता था शंकर जी को याद किया, जो थोड़ा बहुत बोलता था बोल रहा है. उसके बाद सांस मेरी टूट गई और मैं चला. फिर मेरी चेतना जगी यहाँ. तो मुझे क्या लगा कि मैं ऊपर आ गया हूँ, यमराज लेके आ गए. अभी मैं आँख खोलूँगा, सामने चित्रगुप्त मिलेंगे, रजिस्टर लेके बैठे होंगे, और बेटा वो सारे उल्टे वाले काम सब याद आने लगे. उन्होंने पूछेगा तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया. हमने कहा कोई जवाब ही नहीं है यार. मैं कहा यार ये नर्क पक्का है, इसलिए बोल रहा हूँ सही काम कर लेना. मैंने कहा नर्क पक्का है. फिर अचानक ध्यान में आया यार कहीं सुना था किसी प्रवचन में, किसी कहीं पर, या किसी बड़े बुजुर्ग को कहते हुए कि जो वीर गति को प्राप्त होगा उसको स्वर्ग मिलेगा. वीर भोग्या वसुंधरा. मैंने कहा बेटा अपना तो वीआईपी पास है यार, अपना ये कर्म का चक्कर ही नहीं है. मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया. मैंने कहा गाड़ी खोलते हैं. चित्रगुप्त को बोला करो रजिस्टर बंद, अपना ये रहा पास, डायरेक्ट एंट्री स्वर्ग. वो कॉन्फिडेंस लेके हमने आँख खोला. लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों सज्जनों, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड दैट मैं बेड पे ही पड़ा था, मैं मरा ही नहीं था. मैं मरा नहीं था, इस बात से मैं बड़ा शोक व्याप्त हो गया. मतलब आई वाज नॉट हैप्पी. ये क्या हो गया यार, स्वर्ग की एंट्री कर सके, मैं बेड पे ही पड़ा. ये तार वार सब लगे हुए. बट ठीक है, देन आई एम बैक ट्राइंग टू लिव द लाइफ ऑल ओवर अगेन. बड़ा क्योंकि वो टाइम तो फिर आएगा. पश्चाताप भी होता है आज भी कभी कभी, यार लॉस्ट ए चांस. वो बड़ा सिंपल स्ट्रेट शॉर्टकट रास्ता था, अब कर्म करके जाना पड़ेगा. ये बड़ा लंबा रास्ता है यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार. और मरना तो है ही, पता नहीं बूढ़े होके मरेंगे, एक्सीडेंट से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे. नॉट अ गुड आइडिया टू डाई यार. इफ गिवन अ चांस आई वुड अगेन लाइक टू डाई अ वॉरियर्स डेथ यार. आई डोंट नो, कहीं आ जाए हमारी ज़िंदगी में भी सामने कोई आतंकवादी वगैरह तो बढ़िया है. तो सो याद कर लीजिए और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. बाकी सारी चीज़ें रह जाएंगी यहीं पर. उस वक्त बहुत पश्चाताप होगा, और आपको अब ज़्यादा होगा, क्योंकि भगवान बोलेगा एक बंदे ने समझाया था तुम्हें. देन यू कर्स मी कि सर आपने और हमारा काम गड़बड़ कर दिया.
कि आपको बताया था, ना बताया होता तो बात है, बताने के बावजूद तुम फिर भी नहीं तुमने कर्म किए ठीक, तो फिर क्या कर सकते हो। Oh, that is what it is. Yeah. Thank you, sir. So, next thing, what I want to ask you about is like education. Like, I know that you are very keen about education system. You are observing it. You want to change it. You have certain viewpoints about education system, and all we have is like students and IITians almost here. So, what are your views about the present education system? What do you think if you get a chance, you will change? And what is the main cause or threat of education system, and how it is connected to the national security? As a soldier, I'm sure that you will have a wonderful answer for that. चेंज तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, हाँ, बट आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। एक लाइन का आंसर है। ये सारी जितनी भी शिक्षा व्यवस्था पे हम जब बात करते हैं, ये खराब है, वो खराब है, उसका एक लाइन समझ, एक ही लाइन का सिर्फ उत्तर है उसका। शिक्षा जो है हमारे देश में कभी भी शासन का दायित्व नहीं था, सदैव समाज का दायित्व था। अगर आप सोचते हैं कि शासन इसका दायित्व संभालेगा, गवर्नमेंट्स कंट्रोल करेंगी, then ladies and gentlemen will keep trying, will keep trying, will keep trying, it will never work. पुराने ज़माने में बड़े-बड़े राजा, प्रतापी राजा हुए, पराक्रमी राजा हुए, कभी भी किसी ने सिलेबस में डिसाइड किया क्या पढ़ाना है। जो राजा थे वो खुद अपने बच्चे को किसी ऋषि को देते थे कि ऋषिवर मेरे पुत्रों को ले जाइए गुरुकुल, है ना? दशरथ थे महाराज, उन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को वशिष्ठ मुनि को समुक्त कर दिया। He did not dictate how you should teach him, what you should teach him, when you should teach him. So हमारा मूल फ्लॉ यही है कि हम शिक्षा जो है उसको शासन का दायित्व बना दिया है। And in democracy it is even more fatal, because there will always be political compulsions that even if someone sitting in government knows there are things to be corrected, उसमें इतना controversy, ये वो फलान ढिमकान, they will not be able to do it. And दूसरा है कि एक और है, I do not know how to put it again, that will become very controversial, but ठीक है, I'll try and make it sound as less as possible. You know, मैं कई बार ऐसे पूछता हूँ जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स भी रहते हैं, कि आप पहली बार घर से निकलकर स्कूल क्यों आए? Why did you come? आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजा? क्यों लेके आए? अगर कोई चाहता है यहाँ पर तो उत्तर दे सकता है। क्यों लेके आए थे? आप तो बच्चों को स्कूल पहली बार क्यों ले गए? या आज भी भेज रहे हैं स्कूल, कॉलेज क्यों भेज रहे हैं? बच्चे से ही पूछो, आप क्यों आए भाई? आप क्यों निकल के गए थे स्कूल? या क्यों आए? So the answers that I have got so far is that, you know, मतलब ले जाएँ क्या? मतलब सब ले जाते हैं तो हम ले जाएँ। कोई बोलता कि कोई नॉलेज है, कुछ सीखेगा, कोई ज्ञान है। कोई बोलता है कि स्कूल कॉलेज जाएगा तो करियर बनेगा। तो कोई इंजीनियर बनाएगा, कोई डॉक्टर बनाएगा, जो भी बनेगा उसके लिए स्कूल कॉलेज जाना ज़रूरी है। और ये मैं स्कूल कॉलेज को दोष नहीं दे रहा हूँ, समाज को दोष दे रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि समाज से जब हमने शिक्षा को अलग कर दिया ना, दैट इज़ वेयर इट गोज़ रॉन्ग। परिवार में भी एक बात बताता हूँ मैं, जो बड़े लोग हैं, या बच्चे भी हैं, आपके घर में भी छोटे भाई-बहन होंगे, आपने संतान देखी होगी या आगे होंगे। जब बच्चा जन्म लेता है, 4 या 5 वर्ष का जब होता है, जब बोलना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, एक प्रश्न पूछते हैं आप उससे, क्या बनेगा बेटू? पूछते हैं। उसका मतलब क्या होता है? करियर में क्या करेगा? मेरा बेटा क्या बनेगा? फिर ज़्यादा जो लिबरल होंगे, हम इसको छोड़ देते हैं, जो चाहेगा बनेगा, जो चाहेगा बनेगा, राइट? बट यू स्टिल मीन करियर, राइट? स्कूल कॉलेज भी करियर बना रहे हैं, आप घर में भी करियर सोच रहे हो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लिबरल है तो एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, प्लेयर बनना है। अच्छा पिता कौन बनाएगा? अच्छी माता कौन बनाएगा? अच्छा पति कौन बनाएगा? अच्छी पत्नी कौन बनाएगा? अच्छा चाचा कौन बनाएगा? चाची कौन बनाएगा? मामा कौन बनाएगा? दादा दादी कौन बनाएगा? इसके संस्कार कौन देगा? इसकी चिंता ना समाज को है, ना शिक्षा व्यवस्था को। यही सबसे बड़ी भूल हो गई है, देखिए सर। और जब तक शिक्षा शासन के दायित्व रहेगा, ये वैसा ही रहेगा। सो बेसिकली मूल में ही हम गलत चले गए हैं। आप सुधारते रहिए इसको, विल नेवर गेट करेक्ट।
आई डोंट नो हाउ यू सॉर्ट इट आउट। मेरे से पूछेंगे कैसे होगा, प्रोबेबली ठीक है, मतलब इधर उधर की बात कर सकता हूँ, बट स्टिल दिस इज अ मलेस, दिस इज अ प्रॉब्लम। आई एम हैंडिंग ओवर ऑन माय ऑन बिहाफ ऑफ आवर जनरेशन, आई एम हैंडिंग इट ओवर टू यू। आप अपनी पीढ़ी में इसको सॉर्ट आउट कर पाओ, ठीक है, नहीं तो अगली पीढ़ी को देके चले जाना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन कोई ना कोई पीढ़ी तंग आएगी कि यार 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, 400 साल हो गए, इट्स नॉट वेरी वर्किंग यार, तब शायद दे विल गो बैक टू द ओल्डर सिस्टम्स। राइट नाउ तो यही नशा है, यही नशा चलता रहेगा, करियर बनाने का शायद यही प्रायोरिटी रहेगी। बट अगर यही प्रायोरिटी रहेगी देन व्हाई आर वी कंप्लेनिंग? अगर घर टूट रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, समाज टूट रहे हैं, तो व्हाई आर वी कंप्लेनिंग? जिस विषय की पढ़ाई ही नहीं करी, उस विषय में नंबर फेल हो रहे हैं, तो हमें शिकायत किस बात की है? समाज, परिवार, संस्कार हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है, तो वो टूट रहे हैं हम, तो फिर व्हाई आर वी कंप्लेनिंग मैन? सो दैट इज व्हाट इज द फ्लॉ। वी नीड टू लीव इट एट दैट, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, बट मूल बात मैंने आपको बता दी। शिक्षा जब तक शासन का दायित्व रहेगा, ये कभी ठीक नहीं होगा। वो अपने आप में घमंड करते रहिए, दिस इज माई टॉप इंस्टीट्यूशन, दैट इज माई टॉप इंस्टीट्यूशन, दैट इज द टॉप स्कूल, वो ठीक है, टॉप तो कोई ना कोई रहेगा ही, है ना? बट दिस इज जस्ट नॉट वर्क, इट जस्ट नॉट वर्क। No doubt, this was one of the most interesting sessions throughout these 2 days of Ideas Matter Most. I'm so impressed the way how he actually put out all his statements, and I'm sure you all are inspired because every other speakers, which is of course needed, they all spoke about leadership, everything. But again, this was about protecting your nation, protecting your country, and being a warrior everywhere where you go because the enemies are around. Make sure that you, the youth, including me, are going to be the warriors who is protecting the nation because through us only the battle can be won for them. So make sure that you guys are actually winning this battle together. So thank you, sir, for spending out your time and setting these wonderful messages. Wonderful to have you here, sir. Thank you so much, actually.